Okay, dear students, let's go for chapter 4's part 2, reconstruction of partnership. In this, we will understand about accumulated PL and its journal entry. After understanding concept of sacrifice and gain with practical example, we need to understand third very important concept, that is how to deal with distribution of accumulated profits and losses during the time of reconstruction. Okay, whatever at the time of reconstruction, whatever accumulated PL are available in the books, they are to be directly distributed to old partners in old ratio, because these are the partners who have worked for the firm and they are responsible for such reserves. So, at the time of reconstruction, whether it is admission or it is retirement or any other type of reconstruction, accumulated PL are distributed among old partners in old ratio. Let us check its entries and even practical one. This is for your guidance. Specimen, that means how accumulated profits and which are the accumulated profits which will be distributed. Keep in mind, normally profits have credit balance, तो अब इनको क्लोज करना है, तो all profits will be debited एंड पार्टनर्स को ये पैसा मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा. एंट्री याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व है तो वो अकाउंट डेबिट, सीआर अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व्स आर देन आल्सो accumulated profits, workman accident compensation fund, but access to claim. Keep this in mind, workman's accident compensation fund, एक्सेस टू क्लेम, जितना क्लेम है उतना काटने के बाद रिमेनिंग अमाउंट. सेम मैनर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगेन this also will be distributed, but access to the loss of investment in market value. Okay, all these accumulated profits normally have a credit balance. At the time of reconstructions, they are to be closed, so they will be debited, and partners capital or current account, depending upon the method, will be credited. Distribution of accumulated PL to old partners in old ratio. Same manner, if any accumulated loss or if any fictitious expenses such as advertisement campaign, research and development expenses, any other non-return of revenue expenditures are shown at the time of reconstruction, all of them also will be distributed to old partners in old ratio. They all are our business losses. Normally they have a debit balance. इनका बैलेंस कैसा होता है अपने पास? डेबिट. इनको अभी रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्लोज करना है तो करेंगे क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनर्स के कैपिटल होगा डेबिट. लॉस है तो पार्टनर्स को डेबिट. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द मेथड में बी डेबिट टू दीज लॉसेस. ओके, प्लीज सी दैट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन old ratio, old partners, old ratio. Keep this in mind. Profit है, एक ही hint याद रखो, again hint. Keep in mind this hint. Profit है तो partners का account credit होगा, loss है तो partners का account debit होगा. Okay? Okay. In theory, we have properly understood that accumulated profit are distributed to whom? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बिकॉज उनकी मेहनत से ये जमा हुए हैं. प्रॉफिट हो तो मिलेगा, लॉस होगा तो भी उनको ही बेयर करना है. किनको? ओल्ड पार्टनर्स को. कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. तो आई एम डूइंग विथ यू इलिस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 128 and illustration number 10, because I want you to practice the exercise question which is given and it has been asked in board exams, because from this chapter short questions are asked in board exam. Let us see this question. How many partners are there? 2.
Ram and Rahim are partners of a partnership firm and they share profit and loss between them in 4:3. So this is which ratio given to you? Old. Okay. Following are the balances given as on 31st March 17. Profit loss का कौन सा बैलेंस है? डेबिट. सो ये क्या, उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअली इट इज लॉस 14,000. रिजर्व फंड 42,000. प्रॉफिट, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड आना चाहिए माइंड में इमीडिएटली. ये क्या है? बिजनेस की लायबिलिटी. रिजर्व फंड क्या हो जाता है? एक तरीके का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू. आपको ये सब चीजें आनी चाहिए. नेक्स्ट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड. इट इज नॉर्मली अ रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर अस बट अबाउ द क्लेम. अगर किसी वर्कर का क्लेम होगा तो उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे, वो माइनस करके बाकी डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो चलो देख लेते हैं. ऑन द अबाउ डेट राम एंड रहीम डिसाइडेड टू शेयर ऑन न्यू पीएल इन 1:1. इसका मतलब रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. इसका मतलब अभी हमको सारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देने पड़ेंगे. अ क्लेम ऑफ 5,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड. चलो, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है कितना? वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड ओरिजिनली इट इज गिवन टू अस 26,000 बट इसमें से क्लेम है 5,000 का. दिस हैज टू बी केप्ट क्योंकि ये हमको पे करना पड़ेगा. इसके एक्सेस में जितना अमाउंट है दैट इज 21,000. दिस विल बी ट्रीटेड एज रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ओके, नॉट ओनली दिस मच, इफ आई चेक फर्दर you are supposed to pass journal entries for distribution. Okay, now if I check here, ये डेबिट बैलेंस है पीएल का, इट इज अ लॉस. ओके, दिस इज प्रॉफिट. सो हमको दो चीजें, एक ये प्रॉफिट है, दूसरा ये प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. और एक लॉस है 14,000, वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे. लेट अस गो फॉर पासिंग जर्नल एंट्री. सी, फॉर्मेट ऑफ जनरल ओनली दे फॉलो फॉर्मेट ऑफ जनरल ओनली. जैसे आप जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं वैसे ही हम फॉर्मेट बनाएंगे. नॉर्मल आता ही है, मैं आपको इस तरह से रफली बना के दिखा रही हूं सो दैट यू हैव आइडिया. सॉल्यूशन इफ आई पुट इनटू हियर, आई विल सिंपली पुट सीरियल नंबर और डेट दिया है तो डेट, जैसे यहाँ पे इन्होंने डेट दी है तो डे लेंगे और यहाँ पे डालेंगे पर्टिकुलर्स, देन LF, देन हियर डेबिट अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज. ओके, जर्नल एंट्रीज जैसे लिखते हैं ना, जर्नल एंट्रीज in the books of Ram and Rahim. Okay, formalities I am just explaining you. Now first entry, अगर मैं देखूं पहला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था. अगर क्वेश्चन देखते प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 14,000, लॉस है, इसके लिए पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट. लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर क्रेडिट. कीप दिस शॉर्टली इन माइंड. बस इतना याद रखेंगे, देन इट बिकम्स वेरी इजी. लेट अस गो फॉर जर्नल एंट्री. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल ऑब्लिक करंट डिपेंड्स अपॉन द वे मेथड दे आर फॉलोइंग. अकाउंट डेबिट. रहीम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट to profit and loss account. Total profit and loss is of 14,000 being accumulated loss distributed to old partners in old ratio. Short में short narration. Okay, 14,000 you will distribute among old partners. Old ratio is 4:3, so it comes to 8,000 and 6,000 respectively. Old ratio is 4:3. Okay, now let's go for next. Even accumulated profit है, एक रिजर्व फंड है 42,000 का और दूसरा वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. बट वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एक्सेस टू क्लेम दैट इज
21,000. Let us go for entry. Keep in mind accumulated profit है तो पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट. पार्टनर को पैसे मिलेंगे. So let us pass this entry. Reserve fund account debit. नॉर्मली इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, इसको बंद करना है तो क्रेडिट करेंगे. वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट. एक्सेस टू क्लेम, हाँ, दैट इज 26,000 minus 5,000, only 21,000. Okay, I'm just showing it to you so that you don't have any query. Then go to, जाएगा किसको? पार्टनर को. To Ram's capital oblique current account, to Rahim's capital oblique current account. Okay, being accumulated profit distributed to all partners in old ratio minimum. इतना नरेशन लिखेंगे अपन, ठीक है. और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. 36,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको इतना आएगा 36,027. दिस प्लस दिस, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया आपने? 4:3 में. डिवाइडेड इंटू 4:3. टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा? 63,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3 में. ओके, देन वन फॉर्मेलिटी यू नॉर्मली डू. टोटल जो ग्रैंड टोटल आए उसको ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक टोटल बनाएंगे. 77,000 का टोटल है ये. 77,000 डेबिट, 77,000 क्रेडिट. कंप्लीट्स दिस वे. 1.5 mark, 1.5 mark you get as 3 marker question in your paper. Okay, you will practice out through practice sum which I'll give you. Okay, now let us understand even how assets and liabilities are revalued and adjusted in next session.